کچھ قواعد و ضوابط ہیں اور کچھ آئینی جو ہے وہ حدود ہیں جن کو سامنے رکھ کر ہی استعفیٰ منظور کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلی آرٹیکل 64 آف دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی شک میں یہ ہے کہ استعفیٰ جو ہے وہ ہاتھ سے لکھا ہوا ہونا چاہیے۔ استعفیٰ دینے والا ممبر جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے استعفیٰ لکھے گا، ان ہز ہینڈ رائٹنگ، اور اس کے بعد وہ جب استعفیٰ، پھر رولز یہ کہتے ہیں، رول میں یہ ہے کہ وہ جس وقت استعفیٰ اسپیکر کے پاس آتا ہے تو اسپیکر اس ممبر کو بلائے گا اور بالکل پرائیویسی میں، کانفیڈنس میں ان سے یہ بات کرے گا کہ کیا آپ نے یہ استعفیٰ خود لکھا ہے، یہ آپ کی ہینڈ رائٹنگ ہے، اور کیا آپ جو ہے آپ پر کوئی دباؤ، کوئی پریشر، کوئی ایسا معاملہ تو نہیں ہے۔ اور اگر اسپیکر کو یہ محسوس ہو یا اس کے پاس کوئی انفارمیشن ہو کہ یہ آ تو میرے پاس گئے ہیں لیکن بحالت مجبوری آئے ہیں اور دراصل یہ استعفیٰ نہیں دینا چاہتے، تو اسپیکر پہ لازم ہے کہ وہ اس کا استعفیٰ قبول نہ کرے۔ لیکن اگر اسپیکر کو یہ سیٹسفیکشن ہو جاتی ہے کہ جو ممبر ہے وہ ان کے سامنے جو بات کر رہے ہیں وہ حقیقت پر ہے، وہ اور اپنی مرضی سے استعفیٰ دینا چاہتے ہیں، تو ان کا استعفیٰ منظور کیا جانا چاہیے۔ یہ ایک طریقہ کار ہے، پھر ان کا استعفیٰ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو اسپیکر بھیج دے گا۔ اب یہاں آج انہوں نے فرمایا کہ 127 لوگوں نے جو ہے وہ استعفے دیے تھے، تو آپ این بلاک 127 لوگوں کے استعفے قبول کر لیں۔ تو پھر میں نے ان کے سامنے کچھ حقائق رکھے۔ میں نے ان کو کہا کہ بہت سارے آپ کے دوست جو تھے جنہوں نے استعفے دیے، ان میں سے کچھ لوگ تو کورٹ میں چلے گئے اور انہوں نے عدالت میں جا کر کہا کہ یہ استعفے جو ہم سے لکھوائے گئے تھے، اس وقت ساری پارٹی، پارلیمانی پارٹی بیٹھی ہوئی تھی اور ہمیں یہ تاثر دیا گیا تھا کہ یہ تو ہم حکومت پہ دباؤ کے لیے استعمال کریں گے اور یہ استعفے نہیں ہوں گے، لہٰذا میں نے تو استعفیٰ نہیں دیا۔ کورٹ نے پھر، اسلام آباد ہائی کورٹ نے ممبرز کو کہا کہ آپ جائیں واپس اسپیکر کے پاس جا کر یہی بات کریں، اور انہوں نے آ کر مجھ سے بھی یہی بات کی جی کہ میں نے تو استعفیٰ نہیں دیا، میرا استعفیٰ منظور نہ کیا جائے۔ اسی طرح کچھ لوگوں نے لیو اپلیکیشن بھیج دی، کچھ لوگ ہاؤس میں آ کر چلے گئے حاضری لگوا کر۔ تو اس سارے سیناریوں میں، ایسی صورتحال میں اسپیکر کو جو فیصلہ کرنا ہے وہ آئین اور قواعد ضوابط کو سامنے رکھ کر کرنا چاہیے تھا۔ یہی بات میں نے اپنے ان دوستوں سے، ان سے گزارش کی، جس میں بڑے سینئر لوگ آئے، فارمر اسپیکر جناب اسد صاحب تھے، اسد کیسر صاحب تھے، اسی طرح سے ڈپٹی اسپیکر صاحب تشریف فرما تھے، اور بڑے سینئر ساتھی تھے ان کے، پارلیمنٹیرینز تھے سارے۔ تو ان کے سامنے میں نے رکھی بات، میں نے کہا دیکھیں کہ میں بطور اسپیکر جو ہوں وہ تو صرف ایک چیز کو دیکھتا ہوں کہ آئین کو اور قواعد و ضوابط کو۔ اب پارٹیز کا یا آپ کا کوئی پولیٹیکل سٹانس ہے، پولیٹیکل پوزیشن پارٹیز لیتی رہتی ہیں، آپ نے ایک پولیٹیکل پوزیشن لی ہے، اور اگر گورنمنٹ کی ایک پولیٹیکل پوزیشن ہے تو اس میں میں تو چاہوں گا یہ ذاتی طور پر، اور میں نے ان کو کہا کہ آپ آئیں، آپ ایوان کے اندر آئیں، آپ نے جو بات کرنی ہے وہ آپ ایوان کے اندر کریں، یہاں آپ کی آواز زیادہ مؤثر ہوگی، اور آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ملک کو اس وقت چیلنجز درپیش ہیں، تو ان چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے اس وقت ضرورت اگر کسی چیز کی ہے تو وہ مفاہمت کی ہے، وہ مل بیٹھنے کی ہے، وہ پاکستان کی سوچ رکھنے اور پاکستان کو سامنے رکھ کر فیصلے کرنے کی ہے۔ تو میں آپ سے یہ توقع کرتا ہوں کہ آپ سینئر لوگ ہیں، ایک جماعت ہے آپ کی، آپ تشریف لائیں، پارلیمان میں آئیں، تو بطور اسپیکر میں آپ کو یہ جو ہے یہ بالکل آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ آپ کو میں پورا موقع دوں گا بات کرنے کا، آپ بولیں۔ اور میں اس لیے کہتا ہوں کہ پارلیمان ایک ایسی جگہ ہے جہاں ایک ایسا فورم ہے جہاں سب اکٹھے ہو جا سکتے ہیں، سیاسی مخالفین بھی سن رہے ہوتے ہیں، ایک بول رہا ہوتا ہے، اسپیکر جو ہے وہ کسٹوڈین آف دی ہاؤس ہے، اس کی نظر میں تمام ممبران برابر ہیں، لیکن سب سے اہم کام اور مشکل کام اسپیکر کے لیے یہ ہے کہ استعفیٰ منظور کرنا۔
ये इस्तीफा मंजूर करना कोई आम सी बात नहीं है, 6-7-8 लाख लोगों के मैंडेट की बात है। अब वो जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, जो हल्के हैं जिनमें 7-8 लोगों ने एक मेंबर चुना है, वो मेंबर आकर असेंबली में अगर नहीं बैठेगा तो उन 8 लाख लोगों का जो मैंडेट है उसका क्या होगा, उनकी नुमाइंदगी कौन करेगा, उनको रिप्रेजेंट कौन करेगा। तो ये वो सवालात हैं जो किसी भी स्पीकर के सामने होते हैं। तो मैंने आज भी इनसे यही कहा कि मैं तो आपको दावत देता हूं कि आप वापस आएं, और इन वजूहात की बिना पर, इन कानूनी और आईनी मामलात को सामने रखते हुए मैंने अब तक इस्तीफे मंजूर नहीं किए। जिन लोगों के मैंने इस्तीफे मंजूर किए थे, या तो उन्होंने टेलीविजन पे जाकर बयान दिए, उन्होंने हाउस में जाकर बयान दिए, या उनके हाथ के लिखे हुए थे, या उन्होंने ट्वीट किए। तो फिर मैं समझता हूँ कि हमने जब सोच लिया कि ये वाकई इस्तीफ़ा देना चाहते हैं, तो उनके इस्तीफ़े मैंने मंजूर किए। उनका ख्याल था कि ये इस्तीफ़े शायद पिक एंड चूज़ पे हैं, तो मैंने उनकी खिदमत में ये गुजारिश की कि पिक एंड चूज़ के अलावा ये मामला नहीं है पिक एंड चूज़ का, बल्कि ये मामलात को सामने रख कर जो है इस्तीफ़े मंजूर किए गए। अगर किसी ने फ्लोर ऑफ द हाउस पर तकरीर की है और उसने कहा है कि मैं वॉलंटरी तौर पर मैं इस हाउस को छोड़ के जा रहा हूँ, तो उसका इस्तीफ़ा तो बनता है, उसको तो मैं इग्नोर नहीं कर सकता। या किसी का जो कोई उसमें वीडियो में आया है और उसने जाकर ट्वीट भी कर दिया है, जाकर उसने टेलीविज़न पर किसी प्रोग्राम में जाकर ये बरमला इजहार किया कि मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ अपनी मर्ज़ी से, तो मैं उसका इस्तीफ़ा मैंने कबूल किया है। लेकिन मैं एक दफ़ा फिर अपने तमाम दोस्तों से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि बतौर स्पीकर जो है मैं सबके लिए साझा हूँ। बीइंग कस्टोडियन ऑफ द हाउस जो है मेरा कोई पसंद नापसंद नहीं है, लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा हर जमात को कि इस वक्त मुल्क को मफाहमत की ज़रूरत है। इस वक्त मुल्क को ऐसे हालात की ज़रूरत है जिनमें ऐसे हालात पैदा करने की ज़रूरत है, इतने अच्छे हालात पैदा करने की ज़रूरत है, हालात को बेहतर बनाने की ज़रूरत है जिससे हम मुश्किलात से बाहर आ सकें। और ये 22 करोड़ लोगों का मुल्क है। इसमें मैं समझता हूँ कि ना किसी की ज़ाती अना होनी चाहिए, ना कोई ज़ाती ज़िद होनी चाहिए, बल्कि अपनी ज़ात से बालातर होकर, अपनी सियासत से बालातर होकर हमें पाकिस्तान के बारे में सोचना चाहिए, उसकी फ़िक्र करनी चाहिए। और वो जो दानिशगाह है ना जहाँ हम बैठ सकते हैं, वो पार्लियामान। ये 22 करोड़ लोगों की दानिशगाह है, 22 करोड़ अवाम की जज्बात की और एहसासात की ये अमीन है। मैं समझता हूँ कि मैंने जो बातें जब ये की तो मैंने उनसे कहा कि अगर आप चाहते हैं तो मैं दोबारा तमाम मेंबरान को ख़त लिख देता हूँ, वो आए मेरे सामने आकर वो अपना मौक़िफ़ बयान करें। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि तमाम मेंबरान एक दफ़ा कोई पार्टी लेकर आए और सबको बिठाकर कोई फ़ैसला करने की कोशिश करे, तो उसको मैं दबाव समझता हूँ। क्योंकि इनके अपने पार्टी के लोगों ने जब फ़ोन करके कहा, जब हाज़िरियाँ लगवा ली, जब छुट्टी की दरख्वास्तें दे दी, जब वो कोर्ट में चले गए, तो फिर मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि एन ब्लॉक किसी के इस्तीफ़े मंजूर करूँ। ना इसकी आइन इजाज़त देता है, ना इसकी असम्बली के क़वाइद व ज़वाबित इजाज़त देते हैं। तो जब मैंने उनसे कहा कि मैं दोबारा ख़त लिख दूँ, तो उन्होंने कहा कि हम अपनी पार्टी से मशवरा करके फिर आपसे बात करेंगे। उन्होंने मुझे कहा कि आप अपना किरदार अदा करें बतौर स्पीकर के, और उनका 1 पॉइंट एजेंडा है कि इलेक्शन जल्द हो जाने चाहिए। तो मैंने उनसे कहा कि ये आपका एक पॉलिटिकल जो है वो स्टांस है, हर जमात का को हक है को अपना पॉलिटिकल जो है वो स्टांस बनाए, उस पर आप हक बजानब हैं या नहीं हैं मैं उस पर तबसरा नहीं करना चाहता, लेकिन ये पॉलिटिकल फ़ैसले हैं। आप ये भी तभी कुछ इस पे बातें करेंगे जब आप हाउस में आएंगे, तो जब आप एक दूसरे से मिलेंगे। अगर आप एक दूसरे के नज़दीक ही नहीं आएंगे, डायलॉग ही नहीं खोलेंगे, तो मामलात कैसे हल होंगे। तो मैं अब भी यही कहता हूँ बतौर कस्टोडियन ऑफ द हाउस, बतौर स्पीकर, कि मुल्क को मफाहमत और भाईचारे की ज़रूरत है। सियासत जो है ये पैटी पॉलिटिक्स जो है ये मुल्की मफादात से बालातर नहीं रखनी चाहिए। ना किसी की अना, ना किसी की ज़िद मुल्क से और मुल्क के मफादात से बालातर होनी चाहिए। ये हम सब का मुल्क है, कोई अपोजिशन में है, कोई हुकूमत में है, कोई किस जमात में है, कोई किस जमात में है,
लेकिन ये मुल्क 22 करोड़ लोगों का है। इसको मजबूत करने के लिए, इसकी मुश्किलात कम करने के लिए इस वक्त की अहम तरीन ज़रूरत सिर्फ एक है कि हम मफाहमत करें और हम पार्लियामान में आकर हर मसले पे डिस्कस करें, हर मसले पे बहस करें, हर मसले में वो क्या चाहता है, मैं क्या चाहता हूँ। अगर मैं मेंबर हूँ तो मुझे पार्लियामान में आकर उसका कोई हल देना चाहिए। पाकिस्तान मुश्किलात से कैसे बाहर निकलेगा? आज जो है ना, सियासत ये होनी चाहिए कि हर जमात जो है, खाई वो हुकूमत में है या मुखालफ है, अगर वो अपोजिशन में है तो वो आकर असम्बली में बताए कि इस तरीके से पाकिस्तान को हम इस गर्दाब से निकाल सकते हैं। ये होगी सही पॉजिटिव पॉलिटिक्स। और इसी के लिए मेरी ख्वाहिश भी यही है और मेरी तवक्को भी ये है कि तमाम जमातें मुल्की हालात को सामने रखते हुए इस वक्त बहुत संजीदगी के साथ मफाहमत की तरफ देखेंगे, मुखासमत की तरफ नहीं। बहुत शुक्रिया। कहना था कि पीटीआई के अरकान से खुशगवार मुलाकात रही है। पीटीआई का यह ख्याल है कि उनके 127 लोगों ने इस्तीफे दिए हैं, जिसे मंजूर किया जाना चाहिए। मेरे मुताबिक इसके लिए कुछ कवायद व ज़वाबित हैं और आईनी हुदूद हैं जिनका ख्याल रखा जाना अज हद जरूरी है। आइन की शिक में है कि इस्तीफा देने वाला इस्तीफा अपने हाथ से लिखे और रूल्स के मुताबिक। में मुकालमा होता है, आर्गूमेंट होता है, बैठ के बातचीत होती है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे माहौल में बात हुई और उन्होंने मेरी बातें सुनी, मैंने उनकी बातें सुनी और बड़े इज़्ज़त और वक़ार के साथ। और मैं यकीनन जब उन्होंने कहा कि वो अपनी जमात से मशवरा करेंगे तो मैं तो हाज़िर हूँ। वो एक गलत तासुर के एक मेरे अजीज़ ने दे दिया कि मैं कोई जब वो आते हैं तो मैं भाग जाता हूँ। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। वो लफ्ज़ों का चुनाव शायद उनसे गलत हो गया, वैसे तो बड़ा अच्छे आदमी हैं, मैं भी उनका एहतराम करता हूँ। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि मैं मौजूद हूँ यहाँ पर। जो भी जमात आकर मुझसे बात करना चाहती है, किसी मसले पर भी बात करना चाहती है, मैं तैयार हूँ, हर वक्त तैयार हूँ। और मेरी ख्वाहिश है कि ये पार्लियामान की इज़्ज़त और तौक़ीर में इजाफ़ा हो और इसमें इसी पे हमने काम करना है। ये देखें, पाकिस्तान, मैंने पहले भी बहुत दफ़ा उसी बात को मैं रिपीट कर रहा हूँ कि पाकिस्तान से बढ़कर तो कोई चीज़ नहीं है ना। पाकिस्तान की इस्तेहकाम, पाकिस्तान है तो हम सब हैं। स्पीकर साहब, ये जो लोग आज आपको मिले हैं, इन्होंने एक तरह की तस्दीक करा दी है, अब इनके इस्तीफे तो एक्सेप्ट होना बनते नहीं है। नहीं, देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं बार बार जो आपको बात बता रहा हूं, किसी ने ये नहीं कहा कि वैसे कि मैं इस्तीफा देना आया हूं और मेरा इस्तीफा आप मंजूर कर लें। दूसरा एक बात यह है कि आप यहाँ 100 आदमी हैं, 100 इकट्ठे आप आते हैं, आप पर एक दूसरे का दबाव होता है। जब मैंने आपसे बात पूछनी है तो फिर आपने अलहदा होना है, अलहदा मतलब इंडिविजुअली, इनफरादी तौर पर मुझसे मिलकर बात करनी है। और जो सबसे आम बात है वो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि अगर ये कहते हैं 127 बंदे जो हैं उनका आप इस्तीफ़ा कबूल कर लें, क्या इनको पता है कि 127 में से कितने बंदे जो हैं वो कोर्ट में चले गए हैं? कितने बंदों ने डिनाई कर दिया है कि हमने इस्तीफ़ा नहीं दिया? कितनों ने आकर हाजिरी लगा ली है? कितनों ने छुट्टी की दरख्वास्त भेज दी है? तो 127 कहाँ है फिर? एक ऐसे कर लेते हैं कि एक इस तरफ से ले लेते हैं, एक इस तरफ से ले लेते हैं, इधर से एक सवाल ले लीजिए। अच्छा जी स्पीकर साहब, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है बाहर जाके, जो वक्त आपसे मिला था और उन्होंने आपके ऊपर इल्जाम लगा दिया कि आप मुतस्सब है। इस बारे में क्या कहेंगे? ये तो बड़ा अजीब इल्जाम है। अच्छा, मैं यहाँ तो उन्होंने मेरी बहुत तारीफ़ की, मेरे पूरा स्टाफ मौजूद था और मैं उनका शुक्रिया अदा करने जा रहा था। डिप्टी स्पीकर साहब भी मौजूद थे, तो मैं तो उनके बारे में कोई ऐसी बात नहीं करूँगा। वो मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम हैं, वो मेरे पास तशरीफ़ लाए थे और वो मेरे कुलीग रहे हैं, आइंदा भी कुलीग होते हैं। और हमें एक दूसरे की इज़्ज़त और वक़ार का ख्याल रखना चाहिए। इस तरह पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग जो है ना, ये माहौल को पूरा गंदा कर देती है, इससे मसाइल का हल नहीं निकलता, मसाइल बढ़ जाते हैं। लिहाजा मैं समझता हूँ कि मुझे नहीं समझ के ऐसी किसी ने बात की हो, ना मुझे यकीन आ रहा है। वो तो बहुत खूबसूरत उन्होंने बातें की यहाँ पर भी, और बड़े रख रखाव वाली, बड़े इज़्ज़त वक़ार वाली। तो मैं उनका मशकूर हूँ कि वो यहाँ तशरीफ़ लाए और मैंने उनकी बात की। आप बतौर कस्टोडियन, ये आपकी जिम्मेदारी भी है। ये बताइएगा सर कि एक इंटरिम मुद्दत के लिए एक टेक्नोक्रेट हुकूमत की क़याम की बात की जा रही है, इसकी कोई आइन में कोई गुंजाइश है, आप क्या समझते हैं? मेरे इल्म में तो नहीं ऐसी कोई बात। क्या ऐसी कोई मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे इल्म में कोई गुंजाइश नहीं है। अरकान थे, उनके मुकम्मल आइन और कानून और पार्लियामेंट के जो रूल्स हैं उसको फॉलो करते हुए उनके
इस्तीफे मंजूर किए गए थे जो 11 पहले थे, इस पे आप क्या कहेंगे? फुल्ली आप कॉन्फिडेंस हैं कि वो 11 के 11 टोटली आइन और रूल्स के मुताबिक उनके मंजूर? देखिए, मैं जिस वक्त मैं इस्तीफे मंजूर करता हूँ तो आइन और कानून को ही सामने रख कर करता हूँ, और उसमें दूसरी तो कोई और फैक्टर नहीं होता। मैंने आज भी यही बात दोहराई अपने दोस्तों के सामने भी कि अगर आप चाहते हैं तो मैं दोबारा खत लिख दूं और वो आपके मेंबरान इनफरादी तौर पर आए मेरे सामने, और फिर वो उनके देखें, पहली बात तो है कि वो मेरे सामने आकर इस चीज़ को वाज़िया तौर पर मुझे साबित करेंगे पर ये वॉलंटरी उन्होंने एक्ट किया है और उन पर कोई दबाव या प्रेशर नहीं। ये बताइएगा कि अगर तहरीक इंसाफ के अरकान दोबारा मीडिया पर जाकर और ट्विटर के जरिए तस्दीक करें यही जिनका इस्तीफा है? नहीं, मैंने ट्विटर की बात नहीं की, वो उन्होंने स्पीकर के सामने आना है। नहीं, जो आपने कहा कि मीडिया के जरिए जो है मैंने उनके इस्तीफे मंजूर नहीं, वो इसलिए किए थे कि उन्होंने देखें ना, वो एक मेंबर था, उसने तो कोई आधा पौना घंटा तकरीर की पार्लियामान में, दूसरे ने भी की पार्लियामान में, वो तो तकरीर मेरे पास मौजूद कुरैशी है। साहब को मंजूर नहीं हुआ, उन्होंने भी कहा था कि हम सब इस्तीफे दे रहे हैं। नहीं, वो आप सब की बात नहीं कर सकते, आप इंडिविजुअल की बात कर सकते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। अगर कुरैशी साहब को मैं खत लिखता हूँ वो आ जाते। मुझे ये बताएं कि जब मैंने तमाम मेंबरान को खत लिखा तो ना आने की वजह क्या थी, क्यों नहीं आए? मैंने तो उनको इसीलिए बुलाया था कि वो तशरीफ लाएं और मेरे सामने आकर सिर्फ यही उन्होंने कहना था कि मेरे पे कोई दबाव नहीं है, मैं खुद इस्तीफा दे रहा हूं अपनी मर्जी के मुताबिक, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक। तो इसमें फिर क्यों उनको जो है तामुल क्या था, क्यों रोका गया लोगों को? जब आप रोकते हैं किसी को तो फिर मेरा शक फिर यकीन में बदली होता है कि शायद ये मजबूरन जो है वो उन्होंने उस दिन लिखे होंगे इस्तीफे, साइक्लोस्टाइल हुए थे, और उसके बाद उनको फ़ोन करने की क्या ज़रूरत थी, यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी, कोर्ट में जाने की क्या ज़रूरत थी? तो फिर मैं बतौर कस्टोडियन जो है वो मैं देखें, दूसरा 11 इस्तीफ़ों को मंजूर करने को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तस्लीम किया है, उस पर बड़ी डिटेल्ड बहस हुई है इस पर, आपको इल्म है इस बात का, और उन्होंने कहा है कि ये ठीक इस्तीफे जो है ना वो मंजूर किए गए हैं। हम कोई काम भी आइन और कानून के जो है वो तहत ही करते हैं, उसके अलावा नहीं करते। जी साहब, ये फरमाइए कि एक हाँ जी। अच्छा, स्पीकर साहब ये बताइएगा कि इससे पहले जो स्पीकर थे उन्होंने इस्तीफे मंजूर किए, उसके बाद नोटिफाई हुए, जब आप आए तो आपने उसको दोबारा नामंजूर किया और कुछ और इस्तीफे मंजूर किए। पहले दो जो स्पीकर साहिबान हैं उन्होंने अलग अलग आर्डर जो है वो किए, जिसकी वजह से मामला अदालत भी जाना पड़ा। इससे क्या ऐवान जो है वो कमजोर नहीं हो रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखें आप इसको पता नहीं किस एंगल से देख रहे हैं। बुनियादी तौर पर यह है कि जब आप कोई इस्तीफा मंजूर करते हैं तो उसके क़वाइद और ज़वाबित के तहत ही उसको एक्सेप्ट करते हैं, और आपको वो सारे स्टेप्स लेने पड़ते हैं। वो मैं समझता हूँ कि डिप्टी स्पीकर साहब जो एक्टिंग स्पीकर थे, उन्होंने जो इस्तीफे एक्सेप्ट किए थे वो एक्सेप्ट करना ही गैर आइनी और गैर कानूनी था। इसीलिए फिर मैंने उनको उसके लिए ना तो उन्होंने मेंबरान को बुलाया, देखो जो बुनियादी शर्त है, बुनियादी शर्त है कि वो हर इंडिविजुअल को, ऐसे नहीं हो सकता कि एक जमात जो है वो खड़ी होके, एक बंदा या लीडर खड़ा होके कहे कि मेरी सारी जमात जो है वो मुस्ताफ़ी हो गई है। हर बंदे के पास 6-6, 7-7 लाख लोगों का मैंडेट है। आप उनको मतलब है उन 7 लोगों के मैंडेट को सिर्फ जुम्बिश कलम जो है वो कैसे ख़त्म कर सकते हैं? राजा साहब, ये फरमाएं, आज जो 8-9 लोग आए थे, इनमें से किसी एक ने भी कहा कि मैं इस्तीफा देता हूँ, या ये मेरा इस्तीफा, एक मिनट पूरी कर दूँ, मैं इस्तीफा देता हूँ, मेरा इस्तीफा एक्सेप्ट कर लें? दूसरा, आपने अपने गुफ्तगू में कहा कि इनके बाद अरकान ऐसे हैं जिन्होंने आपको छुट्टी की दरख्वास्त भेजी, बाद ऐसे हैं जो आपसे इंफरादी तौर पर मिले इस्तीफे की मंजूरी नहीं चाहते। कितने लोग हैं? 10 हैं, 12 हैं, 15 हैं? मैं आपको बताऊं कि बीइंग कस्टोडियन ऑफ द हाउस कुछ ऐसी बातें हैं जो मेरी और उन ऑनरेबल मेंबरान के दरमियान होती हैं, और मुझे यकीन है कि आप इस पे नहीं इंसिस्ट करेंगे। मैं जो आपको कह रहा हूं, मैंने आज इन दोस्तों के सामने ये बात रखी है, नाम नहीं मैं बताया, मैंने तादाद भी नहीं बताया, मैंने इनके सामने बात रखी है। कुछ चीज़ें तो ये केस जो है वो कोर्ट में गया, आपको पता है। इसी तरह बहुत सारे लोगों ने आकर जो है वो हाजिरियां लगवा ली, छुट्टी की दरखास्तें दे दी, और मैंने वो लीव एप्लीकेशन जो है उनकी पढ़ दी, एक्सेप्ट कर ली।
तो फिर ये सब बातें, ये फैक्टर इस बात को तकवीयत देते हैं कि भाई मैं उनको इंडिविजुअली मिलूं। और जब ये लोग कहते हैं कि नहीं इंडिविजुअली आप नहीं मिलेंगे, आप सबको इकट्ठे मिलेंगे, तो मेरा शक जो है फिर वो यकीन में बदल जाता है, मेरे लिए और मुश्किलात हो जाती हैं कि मैं एक्सेप्ट करूं। सर ये जो सवाल का पहला हिस्सा था उसके हवाले से बता दें कि इन लोगों में से किसी ने अपने इस्तीफे की बात की कि जी हम इस्तीफा देंगे? किसी ने आज तो किसी ने नहीं की। स्पीकर साहब ये बताइए कि कॉन्स्टिट्यूशन के पार्लियामेंट का रोल जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से। अगर कोई अमेंडमेंट करनी हो कॉन्स्टिट्यूशन की या इस तरह की कोई इमरजेंसी हो तो फिर तो स्ट्रेंथ ही नहीं इतनी पार्लियामेंट की कि वो उसको लेजिस्लेशन को पास कर सके। देखें यकीनी तौर पर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो नहीं हो सकती, वो तो उसके लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए, लेकिन लेजिस्लेशन जो है वो सिंपल मेजोरिटी से होती है, वो तो हो रही है और हो सकती। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया।